آج کے کلام پر دھیان و گیان کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام مسافروں اور خاص طور پر میرے دونوں بیٹوں شمید اور سشیل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو کراچی سے لاہور کا سفر کرنے والے ہیں، کہ نگہبان فرشتے ان کی حفاظت و نگہبانی کریں اور وہ صحیح سلامت اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہے تو آئے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، کہ تو نے بادشاہت کے راز محض چھوٹوں پر ظاہر کیے ہیں۔ آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم کامل دعا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور وہ ایک جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، ہمیں دعا کرنا سکھا، جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ ہمارے لیے یہ کتنی عظیم دعا ہے، خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک اسے کہتا ہے کہ اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خداوند یسوع مسیح اسے اے ہمارے باپ کی دعا پیش کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہمیں دعا کے بارے میں 3 تعلیمات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، جسے خداوند کی دعا کہا جاتا ہے۔ دوسرا، وہ دعا میں استقامت کی اہمیت کے بارے میں سکھاتے ہیں، اور تیسرا، وہ اس پھل کے بارے میں سکھاتے ہیں جو صحیح اور مستقل دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ ابائے کلیسیا ٹرٹولین نے کہا ہے کہ خداوند کی دعا حقیقت میں پوری انجیل کا خلاصہ ہے۔ مقدس اگسٹن فرماتے ہیں، مقدس دعاؤں کے تمام الفاظ دیکھیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ان میں کوئی ایسی چیز ملے گی جو خداوند کی دعا میں شامل نہ ہو۔ مقدس تھامس ایکوائنس فرماتے ہیں، خداوند کی دعا سب سے زیادہ کامل دعا ہے۔ اس میں ہم نہ صرف ان تمام چیزوں کے لیے مانگتے ہیں جن کی ہم بجا طور پر خواہش کر سکتے ہیں، بلکہ اس ترتیب میں بھی کہ ان کی خواہش کی جانی چاہیے۔ اس دعا کے بارے میں مقدس آندرے 20 نے کہا، جب آپ ہمارا باپ کہتے ہیں تو خدا کا کان آپ کے ہونٹوں کے پاس ہوتا ہے۔ کلیسیا کی عظیم مقدسہ ٹریزا نے خداوند کی دعا مانگتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ دن میں بہت بار جلدی اور بغیر توجہ کے پڑھنے کی بجائے اگر ہم اے ہمارے باپ کی دعا پورے دل سے پڑھتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ سے بہت کچھ پورا ہوتا ہے۔ ایک اور مقدسہ ٹریزا نے کہا کہ اے ہمارے باپ کی دعا ان دعاؤں میں سے ایک تھی جو اس نے اس وقت مانگی جب وہ روحانی طور پر اتنی بھانج تھی کہ وہ محسوس کرتی تھی کہ وہ ایک بھی قابل قدر سوچ کو طلب نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچنا حیرت انگیز ہے کہ ایمان کے ان عظیم اساتذہ نے اس مختصر دعا کے بارے میں کیا کہا ہے۔ شاید اس دعا سے واقفیت کی وجہ سے ہم اس کے مفہوم کی گہرائی میں آسانی سے جھانک سکتے ہیں۔ ہم اسے اپنی تمام دعاؤں کے لیے ایک دعا اور بنیاد اور نمونہ کے طور پر
इस्तेमाल करने में नाकाम हो सकते हैं। इस रुझान को दुरुस्त करने का एक तरीका यह है कि दुआ के साथ हर लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता और गौर फिक्र करते हुए तवील मुद्दत के लिए खुदावंद की दुआ का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से हमें उन कामल हदायत तक पहुंचने में मदद मिलेगी कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने इस मुख्तसर दुआ को सिखाने के फौरन बाद दुआ में इस्तकामत के बारे में एक सबक सिखाया। उसने सिखाया कि हमें सिर्फ चंद दुआएं नहीं मांगनी चाहिए और अगर उनका जवाब नहीं मिलता तो उसे उसी पर छोड़ नहीं देना चाहिए। इसकी बजाय हमें खुदा से उसके फजल के लिए जब तक कि उसे मुकम्मल तौर पर अता न कर दिया जाए मुसलसल दुआएं मांगनी चाहिए। मुसलसल दुआ से हमें क्या मिलेगा, ये एक अहम नुक्ता है। हमें अपनी ख्वाहिशात के साथ खुदा के पास नहीं जाना चाहिए। हमें उससे उन चीजों के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए जो उसकी कामिल मर्जी के खिलाफ हैं। इसकी बजाय जब हमारी दुआ खुदावंद की दुआ पर मबनी है और जब यह साबित कदमी और ईमान पर मबनी है तो हमारी दुआ सिर्फ उसकी मर्जी के लिए होगी जो बाप हमें अता करता है। हमें दुआ करनी चाहिए कि उसकी बादशाही आए। हमें भरोसा रखना चाहिए कि वो हमारी जरूरियात को पूरा करेगा। हमें अपने गुनाहों के लिए उससे मुआफी मांगनी चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि वो हमें बुराई से महफूज रखे। पाक मास के दौरान जब काहिन लोगों को आए हमारे बाप की दुआ करने के लिए दावत देता है, वो जुज़वी तौर पर कहता है कि ये वो दुआ है जो हम कहने की हिम्मत करते हैं। ये एक दिलचस्प बयान है जो खास तौर पर उस दलेरी को जाहिर करता है जिसके लिए हमें बुलाया जाता है जब हम दिल से ये दुआ मांगते हैं। खुदा को हमारा बाप कहना गैर मामूली तौर पर जुर्रतमंदाना है। मेरी कैथोलिक इबादत का बाप 11वां जो इस कामिल दुआ की तालीम देता है इस दलेरी के बारे में दर्ज झैल बयान करता है। हर मसीही को खुदा बाप को अपने बाप के तौर पर देखना चाहिए। हमें अपने आप को खुदा के बच्चों के तौर पर देखना चाहिए और जिस तरह एक बच्चा अपने बाप के पास इत्माद के साथ जाता है हमें भी खुदा बाप के पास इत्माद से जाना चाहिए। प्यार करने वाले वालिदैन से बच्चा नहीं डरता बल्कि बच्चों को सबसे ज्यादा इस बात पर भरोसा होता है कि चाहे कुछ भी हो उनके वालिदैन उनसे मोहब्बत करते हैं। यहां तक कि जब वो गुनाह करते हैं बच्चे जानते हैं कि तब भी वालिदैन उनके साथ प्यार करते हैं। ये तमाम दुआओं के लिए हमारा बुनियादी नुक्ताए आगाज होना चाहिए। हमें इस समझ के साथ शुरू करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा बाप के बारे में इस समझ के साथ हमें वो तमाम इत्माद हासिल हो जाएगा जिसकी हमें उसे बाप कहकर पुकारने की जरूरत है। चूंकि हम में से बहुत लोग इस मिसाली दुआ से बहुत वाकिफ हैं जो हमें खुद हमारे खुदावंद की तरफ से सिखाई गई है, इसलिए इस दुआ को किसी हद तक लालचाना अंदाज में पढ़ने की आजमाइश में हम गिर सकते हैं। हम इसे अपने दिल की गहराइयों से पढ़ने में आसानी से नाकाम हो सकते हैं। हमें हर एक लफ्ज को अपना बनाकर आसमान में अपने प्यारे बाप को इंतहाई इत्माद के साथ पेश किया जाना चाहिए। हम
आए हमारे बाप की दुआ कैसे पढ़ते हैं? क्या हम इस दुआ को बगैर समझे पढ़ते हैं? इसके एक एक लफ्ज पर तवज्जो दिए बगैर क्या हम इसे पढ़ते हैं? क्या हम उन अल्फाज को समझने में नाकाम रहते हैं जो हम आए हमारे बाप की दुआ में पढ़ते हैं? गालबन हमारी तरह से बहुत से लोगों का यही हाल है। आज इस मुकद्दस तरीन दुआ पर गौर करें जो खुद खुदा के बेटे ने हमें सिखाई है। वो इस कामिल दुआ का मुसन्नफ है, लिहाजा हमें इसे अपनी तमाम दुआओं की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। मुकद्दसा ट्रीजा के मशवरे पर अमल करने की कोशिश करें। इस दुआ के एक एक लफ्ज को लें और आहिस्ता आहिस्ता पूरी तवज्जो और प्यार से पढ़ें। खुदा को अपने बाप के तौर पर तस्लीम करने की कोशिश से शुरू करें। उस लामहदूद निगाहदाश्त और हिफाजत पर गौर करें जो वो हमारे लिए एक कामिल बाप की तरह करता है। उसे एक हकीकी और जाती अंदाज में देखें। ये कामिल दुआ इस बात को तस्लीम करने से शुरू होती है कि खुदा कौन है और फिर 7 कामिल दरखास्तों के साथ जारी रहती है। इस दुआ की तमहीद पढ़ने के बाद 7 दुआओं में से किसी एक पर गौर करने के लिए चुन लें ताकि इस दुआ की फरावानी हमारी रूह पर तब्दीली का असर डाले। आज हम खुदावंद की इस कामिल दुआ पर गौर करें, इसका मुताला करने में वक्त गुजारें, हर दरखास्त के बारे में सोचें। जिस तरतीब में खुदावंद यीशु मसीह ने उसे तरतीब दिया, उसकी सादगी और उसकी वजाहत पर गौर करें। तस्लीम करें कि चूंकि हम खुदावंद की दुआ को कसरत से पढ़ते हैं, इसलिए हम कभी कभी उसके हकीकी मानी और खूबसूरती से महरूम हो सकते हैं। हमारे खुदावंद ने हमें यह दुआ एक खास वजह से दी है। इस बात को यकीनी बनाएं कि हम उसके मानी को दरियाफ्त करने और उसकी तालीम पर अमल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।